ایران اسرائیل امریکہ جنگ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور ابھی تک ایران میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان پر حملہ کرنے والی قوتیں، کیونکہ بنیادی مقصد تھا رجیم چینج آپریشن کا، وہاں کی تہران حکومت کا تختہ الٹنے کا، اور تختہ الٹ کر رضا پہلوی اور اپنے لائک مائنڈڈ کو وہاں پہ لے کر جانا تھا۔ لیکن یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے، اور اب پاکستان بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور بہت برے طریقے سے ہم پھنس چکے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ضرور ان کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ آج 4 سال ہونے کو ہیں عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ روس کیوں گئے، اور روس جا کر انہوں نے روس کے ساتھ، صدر پیوٹن کے ساتھ سستا تیل خریدنے کی بات کیوں کی، اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی بات کیوں کی۔ اس بنیاد پہ جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت رابطہ کیا واشنگٹن اور ان کو شکایت لگائی بائیڈن انتظامیہ کو کہ جناب یہ تو ہم سے بالا چلے گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو فون کر کے دورہ کینسل کر کے مختصر کر کے واپس بلانے کا بھی حکم صادر ہوا، جو کہ عمران خان صاحب نے نہیں مانا۔ اور اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا روس کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تھے، سستا تیل آدھی قیمت پر تیل دستیاب ہونا تھا، اور آج 4 سال بعد اس وقت جو خطے کی صورتحال ہو چکی ہے وہیں معاملہ پہنچ چکا ہے، اور اس وقت جو روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں اور جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ آسانیوں میں ہیں، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے بھارت، جو ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ بھی اس وقت بہت آسان باش ہے، کیونکہ وہ بھی روس سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ نے اس کو اجازت دے دی۔ ہم نے گزشتہ رات 12 بجے ناجائز حکمرانوں کے 3 وزیر آئے اور انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کھڑکائی اور پیٹرولیم کی مصنوعات میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا اور 321 روپے اناؤنس کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا، اور اپنے کسی قسم کے کوئی عللے تللے کم نہیں کیے گئے۔ مریم صاحبہ کو چاہیے تھا اعلان کرتی کہ جی آج کے بعد میں اپنا جہاز استعمال نہیں کروں گی، ہم نے پٹرول بچانا ہے اور دولت بچانی ہے۔ میں اپنے 2 انگریز پائلٹس جو ہے وہ ان کو فارغ کر رہی ہوں، جن کی تنخواہ جو ہے 1.25 کروڑ روپیہ ہے، اور جن کے کھانے پینے اور رہائش کا خرچہ بھی کروڑوں روپے ہے، میں ان کو فارغ کر رہی ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا۔ اور اگر بات مان لی جاتی اس وقت عمران خان کی اس ویژن کو دیکھ لیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا اس لڑائی کے اثرات جو ہیں وہ اور ہو رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب سکول جو ہیں وہ کم و بیش بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کلاسز لیں جی گھر سے۔ ایک تو سیکیورٹی کا ایشو، اور دوسرا ایشو ہے یہ جو آپ کا پیٹرولیم کرائسس آج کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہے، اتنا ڈیزل نہیں ہے کہ ہم کھلا ڈلا اس کو استعمال کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ججوں کا، جرنیلوں کا، بیوروکریٹس کا، سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا، جن کی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، پولیس کا، ان کے آپ بند کرتے تھے، کم کر دیتے پیٹرول، ان کی گاڑیوں کو کم کر دیتے، اور جو 10 گاڑیوں کا قافلہ چلتا ہے اس کو کم کر دیتے، اور جہازوں کا استعمال کم کر دیتے۔ لیکن اس کو نہیں کیا گیا، بلکہ سارا وزن ادھر ڈال دیا گیا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی تعلیمی ادارے اور دفاتر جو ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا، اور ان کو بند کر کے جو ہے ورک فرام ہوم، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کام کریں، جیسے کووڈ کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ ہے ان کا ویژن اور یہ ہے صورتحال۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور تاحیات فیلڈ مارشل ہیں وہ، اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، وہ پہنچے ہیں سعودی عرب اور انہوں نے وزٹ کیا ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو تصاویر جاری ہوئی ہیں اس میں وزیر دفاع جو ہیں سعودی عرب کے اور محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو خالد بن سلمان سعودی وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں
शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर होने वाले हमलों और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदों के तनाजुर में सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब सऊदी वज़ीर दिफा ने अपने ट्विटर अकाउंट में बताया है कि मुलाकात में इन हमलों को रोकने के तरीके और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अमूर पर गुफ्तगू की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत अंदाजों से गुरेज करेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा मौजूद है, जिसके मुताबिक अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई बैरूनी मुसल्लह हमला होता है तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इस मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदों को दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी दिफाई ताउन करार दिया गया था, और जिसका मकसद मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत करना और खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अब ये जो विजिट है ये बड़ा जी ट्रिकी विजिट है, ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इसलिए कि ईरान पे हमला हुआ इसराइल का, और ईरान ने वापस जो हमले किए हैं उन ममालिक में किए जहाँ पे उनके ख़्याल में अमरीकी अड्डे थे, अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे और अमरीकी तनसीबात थीं, उन पे हमले किए। और ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की उन्हें रूसी सदर की तरफ से रूस की तरफ से आ चुका है, और मगरबी तराबलाग इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि रूस ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जैसे चाइना ने हमें की थी, और उसके बाद ईरान ने हमले किए। अब तक ईरान जो है वो जवाबी हमलों में मिडल ईस्ट के मुताद्दिद ममालिक को निशाना बना चुका है जहाँ पे फ़ौजी तनसीबात थी, और उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। और अब मामला जो है वो इसलिए ट्रिकी आ गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा पिछले चंद माह पहले अनाउंस किया गया था, और शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ गए थे, और अब जो लगता ये है कि समन किया गया है, तलब किया गया है, और उन्हें कहा गया है कि अब उस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। अब ये पहले ही हम पेट्रोलियम की वजह से तेल की बहरान की वजह से हम मुसीबत का शिकार हैं। हमारी इकॉनमी पहले ही अंडर प्रेशर है, और ईरान जो है वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जो इसराइल और अमेरिका के साथ है हम उसको निशाना बनाएंगे, और जिसकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। अब जो इत्तलाआत हैं, क्योंकि जो बुलाया गया उसमें वाज़ेह तौर पर, क्योंकि आर्मी चीफ के साथ भी उनकी टीम नज़र आ रही है, और खालिद बिन सलमान के साथ भी उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठे हैं इस मुलाकात में। और ट्वीट करना खालिद बिन सलमान का कि जनाब उस मुआहिदे को याद दिलाना कि उसके अकॉर्डिंगली अब अमल किया जाए, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब ये कह रहा है पाकिस्तान को कि अब या तो ईरान को रोकें या फिर आप ईरान को जवाबी कार्रवाई करें। ये एक ख़तरनाक काम है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में DGISPR फ़ौज के तर्जुमान और हमारी हुकूमत को ये बताना चाहिए कि ये मामला क्या है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरा ये जी कि इसकी जद में हम वैसे भी आ चुके हैं, और न सिर्फ आ चुके हैं बल्कि हमारे काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम मुत्तहिदा अरब अमारात को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम कतर को नाराज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इन्हीं की मरहून मिन्नत हैं। अब इस लड़ाई से कैसे बचना है ये अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी जानिब UAE के, क्योंकि हर किसी की, हर मुल्क की मईशत अंडर प्रेशर है। UAE के जो ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, वो भी उठ खड़े हुए हैं, और उन्होंने ख़त लिखा है। कारोबारी शख्सियत हैं खलफुल जबतूर ने ट्रंप को ख़त लिखा है कि हमारे खित्ते को ईरान के साथ जंग में घसीटने का इख्तियार आपको किसने दिया, और आपने ये ख़तरनाक फ़ैसला किस बुनियाद पर किया, और ये फ़ैसला सिर्फ आपका था या फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के दबाव का नतीजा था। खित्ते के ममालिक के नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन है? ये अरबपति ताजिर हैं, और उन्होंने ये ख़त लिखा है सदर ट्रंप को। मतलब ये है कि मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी, हमारी हुकूमत भी अंडर प्रेशर है, हमारे हुक्मरान भी अंडर प्रेशर हैं, और हालात वाक़यात जो कि ये हैं कि
एशियाई कारोबारी इदारों ने तेज़ी से फंड्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात से निकालना शुरू कर दिए हैं और इन्हें सिंगापुर और हांगकांग मुंतकिल कर दिया है। दुबई और अबू धाबी के बैंकों में रकूम की फौरी मुंतकिली की दरख्वास्त में इजाफा हुआ है। ये राइटर्स का दावा है और उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है जी। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और एक और ख़बर है और वो है अमेरिका इसराइल ईरान जंग में कुवैत के खाम तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म होने के बाद ऑयल फील्ड में पैदावार कम होना शुरू कर दी है और कुवैत का अपनी तेल की पैदावार और रिफाइनिंग सलाहियत को मज़ीद महदूद करने और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तेल निकालने पर गौर करना शुरू कर दिया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और इसी तरीके से कतर ने भी आपको पाकिस्तान को इत्तला दे दी है कि वो आपकी LNG जो गैस है उसकी सप्लाई मुनक़ते कर रहा है। तो हर तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है इस वक्त अंडर प्रेशर और पाकिस्तान भी इस लड़ाई में जो है वो घेरे में आ रहा है और आ चुका है, बल्कि क्योंकि अब कोई एक फ़ैसला करना होगा। और अगर खुदा न खास्ता इस लड़ाई का हिस्सा बनता है तो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के ख़िलाफ़ हमें नहीं जाना चाहिए। फ़िलवक्त हम सुलह तो करवा सकते हैं लेकिन इस लड़ाई का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। इसी में हम सब की आफ़ियत है, क्योंकि पहले ही आयतुल्लाह ख़ामनाई के शहादत पे जो पाकिस्तान में मुजाहरे हुए थे उसमें 36 हम जो हैं अहले तशी हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो शहीद कर दिए गए और गिलगित और स्कर्दू में 3 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा। और वहाँ पे जो हमारी अस्करी और क़यादत के दरमियान ख़िलाफ़ और हमारी सियासी क़यादत के खिलाफ जो वहाँ पे नारे लग रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक नारे लग रहे हैं और वो फील्ड मार्शल के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं मुसलसल। तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड जी। और उसके बाद अगली खबर है कि इन सारे हालात में सदर ट्रंप जो हैं वो भी इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं और ईरान के ख़िलाफ़ हमलों और मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाज़े के बाद ट्रंप को मुआख़ज़े के तहरीक का सामना है, इम्पीचमेंट का सामना है। और अब अमेरिकन ज़राए इब्लाग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जो फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसकी वजह से अब अमेरिका के अंदर ये बात बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि इसने अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाया और ईरान के साथ जंग करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी रोकने से इनकार कर दिया। ये बात भी जो है वो अभी तक बात साबित नहीं हो सकी और इसमें अमेरिका का फौजी जानी माली नुकसान तो हो ही रहा है और अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक लॉस भी हो रहा है। इसलिए ये खबर आ रही है कि अब सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट का जो इम्कान है वो 62% तक जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि 62% जो है, बल्कि 67% पे चला गया है ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की जो तहरीक है ये पेश करने का। इसलिए मुआख़ज़े के इम्कानात पहले 22 फरवरी को 67% तक पहुंच गए थे और इसके बाद से आगे पीछे हो गए, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सदर ट्रंप जो हैं वो मुआख़ज़े का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो ख़बरें आ रही हैं, ईरानी सदर ने रूस की हमायत का करने पर शुक्रिया अदा किया है और अब रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जंग में ईरान के साथ खड़ा हो गया है और अब उसकी हर तरह से जो है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी कर रहा है और उसको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो हो रही हैं, जिसकी बुनियाद पे ईरान जो है वो अपना दिफा भी कर रहा है और उसके हमले जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं।